Hello students, how are you all? I hope you are all good. Today I am starting your chapter number 3 of chemistry, atoms and molecules. In this chapter we learn about what are atoms, what are molecules, how atom and molecules combine, how they exist and how they form extra molecules. But before starting this important topic, atoms and molecules, there is another important topic, which is laws of chemical combination. These laws consist of three. There are three laws under this category. Laws of chemical combination states what are the laws which forms the basis of reactions. जो ये लॉ है हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारी केमिस्ट्री की क्या है, फाउंडेशन है. These laws act as a foundation for the chemistry. These laws states how the atoms or molecules create, how they exist and how they form compounds. Now in this condition, in this case, there are three rules. First one, law of conservation of mass. Conservation mass or matter. If you remember, I already explained in physics about law of conservation of momentum. If you remember, at the time I told you conservation of, there are many laws which are related with conservation of something. Something means in physics that is momentum. Sometimes it is conservation of energy. Here it is conservation of mass. All the definitions are almost same in conservation of mass. Here conservation of mass means, conservation means to save. This law states about saving of mass or matter. तो ये जो लॉ है हमारा, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बताता है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किस तरीके से जो हमारा मास है, ये हमारा मैटर है, वो सेव हो रहता है. सेव रहता है मतलब मीन्स कि वो कंजर्व रहता है, कि हम उसे सिक्योर रखते हैं. सेकेंड रूल, इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Constant means fixed, that cannot be changed, and proportion means ratio. So the law become law of fixed ratio. एक ऐसा लॉ जो हमें बताता है फिक्स्ड रेशियो के बारे में. इस लॉ में हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बन रहा है, वो एक फिक्स्ड रेशियो में बंधे हुए हैं. एंड द थर्ड वन, law of multiple proportion. This law says that multiple means various, proportion means ratio. This law states that the compounds, they are combined in various ratio with one another. In this class we read about only first law and second law of chemical combination. This third law, law of multiple proportion, it will be studied later by you in the senior classes. So today I start with the law of conservation of mass.
तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास similar to law of conservation of momentum, which says that the momentum of the overall system remains same. That is the law of conservation of momentum. So here law of conservation of mass states that mass or matter, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, mass or matter is neither created nor destroyed. कि जो हमारा मास है या मैटर है, हम उसे ना तो बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स वो ऑलरेडी जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ उसका इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सिर्फ एक तरीके से आप एजम्पशन मान सकते हैं कि शुगर है हमारे पास 10 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ शुगर जो है वो 10 ग्राम है, तो ना तो क्रिएट हो सकती है, ना हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ना हम इसमें से एक्स्ट्रा कुछ डिडक्ट कर सकते हैं। ये जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ एक एजम्पशन है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। So this law states that mass or matter is neither created nor destroyed. Causes a chemical reactions. There are two types of substances. First one, reactants, and second, products. Products you can say result. What are reactants and products? Reactant क्या होते हैं और products क्या होते हैं? तो reactant क्या होते हैं? जो the substance which combine together या which started a chemical reaction or which react in a chemical reaction. Substance which react and substance which are formed. रिएक्शंस वो सबस्टेंस होते हैं जो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और प्रोडक्ट्स वो होते हैं, वो सबस्टेंस होते हैं जो हमें आफ्टर केमिकल रिएक्शन वी ऑब्टेन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स वाटर। तो हियर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बोथ रिएक्ट, these are reactants, whereas water is obtained as a final product when hydrogen and oxygen react. It is known as product. Again I will explain law of we have law of chemical combination. केमिस्ट्री में स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 लॉज है। इन 3 लॉज के बेस पे ही हमारी सारी केमिस्ट्री बेस्ड है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ स्टेट्स कि मास को या मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो जैसा है जितना है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए हमारे पास 2 सबस्टेंस होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, केमिकली रिएक्शन जो स्टार्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। सॉरी। और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो गया, हमारा जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो वो फॉर्म करते हैं वाटर। तो वाटर यहाँ क्या, 2 जब एलिमेंट्स हमारे कंबाइन किए हैं, 2 एलिमेंट्स, तब जाके हमें एक प्रोडक्ट मिला। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज प्रोडक्ट, एंड द 2 सबस्टेंस which takes place in the reaction it is known as, they are known as reactants. In terms of reactants and products, this law can be written as, in a chemical reaction total mass of reactants
also total mass of the products. क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो जितना है जैसा है वो उतने का उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे रिएक्टेंट्स है उनका टोटल मास मतलब जितने भी रिएक्टेंट है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका इन दोनों का कुछ अपना मास होगा। तो ये जो मास है x + y, ये जो प्रोडक्ट हमारा आया है H2O, इसका अपना कुछ मास होगा, वो उसके बराबर ही होगा। तो ये दोनों हमेशा क्या है, सेम होंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों जो हमारे रिएक्टेंट है उनका जो मास है वो क्या है, प्रोडक्ट के मास से कम हो या ज्यादा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड द प्रीवियस स्टेटमेंट दैट मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द टोटल मास में क्या हमारा क्या होगा, टोटल मास हमारा होगा, इसमें हम सॉलिड भी लिखेंगे, लिक्विड भी लिखेंगे और गैस भी, अगर कोई गैसेस भी है इंक्लूडिंग एयर भी होगा। ठीक है, जो भी हमारे रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का पार्ट होगा वो हम सबका टोटल मास क्या होगा हमारा, वो एल हो। आई होप आपको ये स्टेटमेंट या ये लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्वेश्चन न्यूमेरिकल। It is simple, but mostly become numerical portion from this part. Now let's do the numerical. Here I am not writing the question, I am just writing in brief. Example है, it has been found experiment that if 100 grams of calcium carbonate quantity 100 gram decomposed completely, then 50 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide are formed. Calcium oxide, ग्राम and carbon dioxide 44 ग्राम। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, हमारे जितने भी लॉज होते हैं वो ऑलरेडी साइंटिस्ट क्या उन्हें वेरीफाई कर चुके होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। तो ये इसके एग्जांपल है कि हम क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी क्वांटिटी कितनी है 100 ग्राम। जब इसे डिकम्पोज किया गया तो इसने क्या फॉर्म किया, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड हुज मास इज 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड हुज मास इज 44 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ जिसका 56 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ इसका 44 ग्राम है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। हाउ मच, 100 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, 2, 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम, their total comes to be 100 ग्राम। तो as we can see total mass of reactant equals to total mass of product. So hence this example verify the law of conservation of mass. अगर एग्जाम में आपको लॉ लिखने के लिए आएगा, ठीक है, तो आपने उसमें एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स डू द न्यूमेरिकल। This is NCERT question, so you can see in the book only. I will write here only important point. Sodium carbonate reacts with ethanol acid. What he said?
सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ। रिएक्ट करता है मतलब दोनों के बीच में a chemical reaction takes place to form sodium ethanoate, carbon dioxide and water। जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करता है सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब नेक्स्ट वन इज इन एन एक्सपेरिमेंट 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्वांटिटी कितने दे रखी है? 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कितना है? 6 ग्राम है। फॉर्म करता है 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड फॉर्म होता है। 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म होता है। Now the question is show that this data verifies the law of conservation of mass। हमें ये शो करना है कि ये डेटा हमें गिवन है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है या वेरीफाई करता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्यूशन, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, आपने इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखनी है। अब हमें क्या पता है? टोटल मास क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इज इट? Total mass of reactants equals to, I am writing in short, total mass of products। Total mass of reactants equals to total mass of products। टोटल मास ऑफ रिएक्टर में हम क्या लिखेंगे? 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल्स टू 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और LHS और RHS जैसे कि आप मैथ में यूज करते हैं, आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11.3 ग्राम। Here 3.11। Since LHS equals to RHS equals to 11.3 gram, so hence this data is according to the law of conservation of mass। हम लास्ट में लिखेंगे कि LHS equals to RHS है, this implies law of conservation, hence verified law of conservation of mass। Okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, hence verified। क्वेश्चन था सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम इथेनोइक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करते हैं। सबकी क्वांटिटी दे रखी है हमें 5.3 दिस। लास्ट में भी पूछा है कि प्रूव करिए कि ये जो डेटा है ये वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आपने इसको नोटबुक में इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले आपने केमिकल रिएक्शन जो भी है बन रही है उसको लिखना है, उनकी क्वांटिटीज लिखनी है। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो गया? मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड इक्वल्स टू मास ऑफ सोडियम इथेनोइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर। टोटल
टोटल अगर हम करेंगे तो देखेंगे कि सिंस LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू 11.3 ग्राम, हैंस द डेटा वेरीफाइड